in basic CDS view, you can see this is the view name, interface CDS view. Uh, so here you can see this is the output, sales organization, distribution, division, sales office, and there is no extensibility. It's extension, you can't do it. You can use it, okay, but you can't extend it. Uh, so here you can see developer extension, user extension. Yeah, it will navigate to your SAP. So extending structured data models, you can get detail here. Okay. So this is like, yeah, you can't, yeah, this is a metadata extension. Only metadata extension, I think so you can do it. Metadata extension annotation, metadata name customer, extended view. Just it is explaining. Yeah. So CDS and KP, you can extend CDS into SAP standard order and customer personality data model without resulting in modification. Okay. Following CDS view extension to extend CDS in keys. Example, in the select list of the customer book view, CDS PLC based view, you have to go through all this thing. This is the spiral indicator. Yeah, so you can go with all these things. This is scatter one. Uh, Somebody, right? Is extension with key user extensibility, no extensibility development per extensibility is nowhere. Okay. Suppose I want to take some more detail. This is the view name, basic CDS view, and no input parameters, no parameter for this, and this is the attributes. So this is the detail. Yeah, here there is some authorization also detail is showing. So the standard CDS view will be, it is showing here. Now it is showing the list. I have opened some other open. Okay, this is the these status. This is basic detail. You have to read all these things, check the details. Yeah, this is the component for this. If if you are getting any issues related with CDS view for this view, right? Then in this component, you have to raise the ticket while raising the ticket with the SAP in OSS. There is a OSS portal, right? Here you can raise.
I will go here in detail, but right now I will just explain you about this. What are the views is available in the standard? All views is available in the standard. Just how to check. Support. Yeah, this is the basic. Now I will go with composite. Suppose I will go this composite. This is the composite CDS view. In composite CDS view, you can see here, yeah, this is like key user extension. Yes, and extension view developer extension. No, here it is mentioned. So this is our, if you will go, you can read this. What are the purpose? Like previous month, it will extract the data of previous month, any sales volume of the current period. All this detail is showing. You can go inside it also, and this is your CDS view, composite CDS view, and this is the data source for the SAC, analytical CDS view, and this is the detail. It will display. Yeah, this is this one I want to show. So this one is authorization. Like if they want sales data, suppose there is 5 user, 2 user want sales data. So for 2 user, you will give authorization of this. If anyone wants delivery data and not sales data, then you can give the authorization of this. This one is security team only. Security SAP security team will do. And they will go with this document and they will give whatever the authorization needed for the user for the CDS view. So this one only I want. I'm searching composite CDS view. So basic CDS view is like we can use in any reporting purpose at any places. But this one will be outside, right? Like not outside, inside, outside both, like Fiori apps, OData, SAP, Analytical Cloud, any places. This composite CDS view. So if you want some more detail how it look like, right? Control A, Shift A, paste here. This one is access, this one is definition, this one is extension. Let's go to definition. Here is the annotation. If it is basic, suppose is basic, then basic. View for composite consumption. So these are all like database functional extension transaction. So here you will go, it look like this. This is simple defined view. So it should have some SQL, right? This one, SQL, SQL, right? And this is the exchange rate in parameter. This is having the parameter. And this is the association. So they have done the left outer join with the calendar. Okay. And it's the association with the rest of interface view. A small interface view has created. And this one is your extension series, extensibility. This one is extensive. Later on, they have created some extension of extension view and they have added SAP only created. And this one is projection. I have told you is if the main view. Yeah, this one is the main. From yeah,
This one is the main view, parameter CDS view. हेलो हेलो अंकुर, ये मतलब प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है वैसे? Sorry, projection और एक्सटेंशन में डिफरेंस? projection is different. Projection actually like to link between the viewer. ये व्यू का लिंक करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन यूज करते हैं। और एक्सटेंशन मतलब हम लोग कोई एक व्यू बनाया, मान लीजिए आप एक कस्टम व्यू बनाए, राइट, जी व्यू बनाए। अब इसके साथ आप मर्ज करना चाहते हो कुछ और एक आप फाइनल व्यू बनाना चाहते हो, राइट। तो इन दिस केस आप एक्सटेंशन करोगे, एक्सटेंड करोगे इसको। एक्सटेंशन ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंसिविटी, ओके, इन द कस्टम फील्ड ऐप। अगर मान लीजिए कोई भी ऐप में आप कस्टम फील्ड है, कुछ कस्टम फील्ड होंगे, कुछ इनहेंसमेंट किए होंगे, कुछ होगा, राइट। यू कैन ऐड योर ओन कस्टम फील्ड यूजिंग फॉलोइंग बिजनेस कंटेंट। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, इसमें। और ये जो ऐड करोगे, ये व्यूज, ये जो आपको स्ट्रक्चर में ऐड करोगे, ये स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल होगा व्यू में, ओके। तो तीन आपका एक्सटेंशन है, एक आइटम है, डिलीवरी है, बिलिंग है। सेल्स का आपको अलग टी कोड होता है, डिलीवरी का अलग टी कोड होता है, बिलिंग का अलग टी कोड होता है, और दोनों का अलग अलग टेबल में जाके स्टोर होता है, करेक्ट। अब वो टेबल में कोई स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर में जाके ऐड करके हम अपना कस्टम फील्ड, और वहां पे वो डाटा स्टोर होगा, और वो डाटा हमारा ये एक्सटेंशन में लेके आएगा, करेक्ट। वो ओके। लेके आएगा और व्यू में डिस्प्ले होगा आपका कस्टम फील्ड्स, ओके। सो यहाँ पे यही मेंशन हुआ है। तो आपको पहले यहाँ पे भी जाके एपीआई एसपी डॉट, ये बहुत यूजफुल होता है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो क्या क्या एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है नो एक्सटेंशन। इसमें क्या है, डेवलपर एक्सटेंशन। डेवलपर मतलब आप व्यू में आप कुछ करो, राइट, व्यू में कुछ चेंजेस कर सकते, वो नहीं कर सकते आप। हाँ, यस रहता तो कर सकते, राइट। अगर ये दोनों नो रहा तो आप उसमें कोई कस्टम फील्ड आप नहीं डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला क्या है आपको, पहला वाला आपका डिलीवरी है, दूसरा वाला बिलिंग है, तीसरा वाला सेल्स है, करेक्ट, करेक्ट। हाँ। ओपन करके जाके देखेंगे ना, वो मिलेगा एक्चुअली। वो मैं बाद में देखता हूँ, मैं एक्सटेंशन में काम करूंगा तब मैं बताऊंगा ये कैसे करते हैं, एक्सटेंड कैसे आता है, राइट। अभी मेरा क्या है ना, हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं अब तक, वो मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ एक बार, और उसमें कोई डाउट्स है कि नहीं, क्या हुआ, सब क्लियर। तो बीच में करेक्शन इशू है क्या? ओके, ये जैसे अभी हम टॉपिक क्या है, पहला हम लोग ये गए थे, पहले जब पहला बार ज्वाइन किए थे, तो उसमें हम वापस जाके एक बार दिखा दे रहे हैं कि थोड़ा वो कुछ कुछ रहता है, राइट। तो देख लेंगे। तो ये है आपका, ओके, ये ऑथराइजेशन है, एक पार्ट ऑथराइजेशन का रहता है इसमें। ऑथराइजेशन कैसे, ये समझ गए ना आप, ऑथराइजेशन कैसे देते हैं, करेक्ट, ऑथराइजेशन कैसे देते हैं, और एक्सटेंशन उसका कैसे चेक करेंगे वो है। और ये पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट में।
और जब आपको व्यूज में जाके चेक करना रहेगा तो व्यूज में भी आप चेक कर सकते हो, वही चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जैसे मान लो क्या है ना, प्रोजेक्शन मान लीजिए आपका ये देखिए लेफ्ट आउटर जॉइंट मारा हुआ है, करेक्ट। कि अगर मान लीजिए कैलेंडर में कोई वैल्यू नहीं रहा, राइट, तो भी मेरा रिपोर्ट यहाँ से लेके आए और कैलेंडर में जो भी नहीं रहेगा वो ब्लैंक आ जाएगा, करेक्ट, उसमें डिस्टरबेंस कुछ ना हो, करेक्ट। ऐसा रहता नहीं है, लेकिन इसे सेफर साइड में लोग लेफ्ट आउटर जॉइंट टू वन लगा के रखा है, मतलब कैलेंडर से एक ही वैल्यू लेके आएगा। एसोसिएशन डाला है इसमें। एसोसिएशन देखिए आपका ये जो डिस्प्ले करेंसी है, राइट, डिस्प्ले करेंसी है। अब आपका ये जो जॉइन है, राइट, ये जो व्यू है आपका करेंसी व्यू है, ये करेंसी व्यू का एलायास ये है। और इसमें जो फील्ड है करेंसी, करेक्ट, ये करेंसी फील्ड आपको इस पे, ये जो मेन व्यू है आपका ये वाला पी पी एनालिटिक्स, इसमें आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए इसने क्या किया, प्रोजेक्शन यूज किया। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, आपको जब आउटपुट डिस्प्ले होता है यहाँ पे, राइट, आउटपुट जब डिस्प्ले होगा तो उससे वो प्रोजेक्ट कर देगा उस पे। आउटपुट से लिंक कर देगा। देखिए यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन भी होता है। करेंसी कहीं होगा, तो करेंसी, ओके, करेंसी कहीं होगा, मैं बता रहा हूँ जरा प्रोजेक्शन क्या कैसे काम करता है मेरे इस। ये देखिए प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस पे वाला भी कहाँ गया, ये है देखिए, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल, जब भी आप व्यू क्रिएट करते हैं, राइट, तो आपका जो सोर्स टेबल होता है, सोर्स मतलब पहला टेबल, सेलेक्ट फ्रॉम VVAK, VVAK में जो भी फील्ड रहेगा उससे लिंक करना है आपको। तो आपको VVAP में आपको लिंक किसका मिलेगा, सेल्स ऑर्डर मिलेगा। और VVAK में पुनार है, मैंने कस्टमर नंबर, तो कस्टमर नंबर भी आपको KNA1 में मिल जाएगा, तो लिंक हो गया। VVFA जो बिलिंग टेबल है, बिलिंग और इनवॉइस टेबल, उसमें भी आपको VVLN मिल जाएगा। लेकिन मटेरियल MAKT, मटेरियल में आपको VVAP में कोई ऐसा फील्ड नहीं है मटेरियल रिलेटेड, है क्या आपको पता है ये ना बात। हेलो। हाँ हाँ, आपने बताया था कल। तो उसमें क्या करेगा ना, तो उसमें वो एरर दे देगा कि ये फील्ड इज नॉट अवेलेबल इन दी VVAK। तो आप क्या करोगे, आउटपुट जो है ना इसका, आउटपुट, आउटपुट ये मटेरियल है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने आइटम से मटेरियल उठाया, आइटम क्या है, VVAP। VVAP भी यूज नहीं कर सकते इधर पे, क्यों, क्योंकि ये आपको एसोसिएशन, आपके एसोसिएशन जब क्रिएट होता है तो जब आप आइटम में क्लिक करोगे तब आपको वो डिस्प्ले होगा। तो क्या किया, ये आइटम में, आइटम से हम मटेरियल उठा लिए, राइट। और ये मटेरियल जो है MATNR, उसका हम लोग एलियास दे दिए मटेरियल। ये एलियास जो है ना वो यहाँ पे किया जाता है और उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, तब वो जाके MAKT का लिंक बैठता है और वो आपको एसोसिएशन क्रिएट करता है। ऐसे काम करता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और कहीं भी यूज किया था ना मैं एक जगह,
99। सिस्टम वेरिएबल्स में कुछ काम कर रहे थे तो यूज किया। पैरामीटर, यहाँ सेशन सेशन यूज किया था, पैरामीटर यूज किया था, सब प्रोटेक्शन। मतलब एक कंट्रीब्यूटर है उसमें जितने हाँ सॉरी, हेलो, हमारे हेलो। दो चार आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोग का आ रहा है क्लियर आवाज? हाँ बिल्कुल आवाज आ रहा है आपका, सही है। नहीं, इनका जो कुछ पूछ रहे हैं, अभी कोई पूछ रहा है ना कुछ। नहीं नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था, मैं ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा। सो प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हम एक चीज API.com में जाते हैं वापस से, और एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था, कंपोजिट दिखा दिया, बेसिक दिखा दिया। अभी आ जाते हैं हम। अच्छा, एक चीज दिखाना भूल गया। अभी इसमें जो है कंट्रोल एंड, ये है आपका कंपोजिट। इसमें आपको एनोटेशन में कंपोजिट को यूज किया हुआ है। क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड TDS है ना। TDS तो हमारे साथ हेलो। हाँ हाँ हेलो। ये तो स्टैंडर्ड TDS है ना, फिर एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। तो इसको हम रिलीज कर सकते हैं। रिलीज, मतलब API के थ्रू रिलीज नहीं कर सकते ना इसको तो हम। देखिए एपीआई, अभी देखिए एपीआई जो है ना, अभी इसमें आपको एपीआई, ये देखिए ये है आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल में आप भेज सकते हैं, एसएपी एनालिटिकल मॉडल है, तो क्रिएट किया इसको हुआ हम है। ये थ्योरी के थ्रू इस पे क्वेरी बना सकते हैं। सेकंड, कंट्रोल एल शिफ्ट, ये देखिए ये डाटा डेफिनेशन है, करेक्ट। 1 मिनट, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अपोजिट, ये वाला ओपन किया था, ठीक है, ये वाला ओपन किया था। यहाँ टाइप किए, यहाँ पे देखिए, ये तो एक्सटर्नल से देखिए ऑप्शन बेस्ड कंटेंट है, ये राइट, इसको ओपन कर दिया। देखिए, हेलो। हेलो। ये आपने जो ये डेटा डेफिनेशन में कैसे दिखा रहा है, ये स्टैंडर्ड TDS ये तो नहीं दिखाता है ना। हेलो। हाँ, डाटा डेफिनेशन में। ये जो आई सेल्स एनालिटिकल क्यूब 1 है, हम्म, ये तो एक स्टैंडर्ड TDS है। हाँ स्टैंडर्ड सीडीएस है। तो ये आपके मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये डेटा डेफिनेशन में यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो कस्टम बनाते हैं अपन वही शो होता है ना। नहीं 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 नहीं, सब शो होता है। आप सर्च करोगे ना, कंट्रोल शिफ्ट ए करके सर्च करोगे, जो आप सर्च करोगे वो आएगा आपका, यहाँ शो होगा। देखिए अभी यहाँ शो हो रहा है, अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेस F5 टू फुल लोड। अभी मैं F5 कर देता हूँ, फंक्शन F5, F5 किया, F5 कर दिया हूँ मैं, ठीक है, फंक्शन F5। ये देखिए कितना सारा व्यूज है, दिख रहा है आपको?
हाँ बट ये मेरे सिस्टम में तो नहीं है। करेगा भाई, करेगा हाँ करेगा करेगा करेगा। करे बट ये कौन सा लाइव किसमें दिखा रहा है आपको? सिस्टम लाइब्रेरी में शो होता है? ओके ओके, ऐसे सिस्टम लाइब्रेरी में शो होता है। ठीक है। मतलब आप ये कहीं भी क्लिक कर लीजिए, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट ए मारिए, बस सर्च करिए, आपका आ जाएगा। कुछ भी सर्च कर सकते हैं, टेबल सर्च कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हम्म। हैं, व्यू सर्च कर सकते हैं, एनहांसमेंट सर्च कर सकते हैं, ऐसे भी प्रोग्राम भी एक रिसेंटली हम लोग ने प्रोग्राम बनाया था ना, कंजम्पशन ओके। जैसे 38 में, राइट? वो भी कंजम्पशन, वो भी सर्च करेंगे आ जाएंगे। ये मतलब आपको आपको मालूम है एसएपी में कैसे होता है? आपको एसएपी में कैसे सर्च किया जाता है? सी, ये लॉग आउट कर दूं मैं? ऋषिकेश, यस सर। हाँ लॉग आउट कर दूं मैं आपको? हाँ सर, कर दो। अच्छा, ये देखिए आपको एसी एटी आता है। एसी एटी में आप गए, आप कहाँ गए? यहाँ पे आप सी स्टार, मान लीजिए कस्टम वन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, क्लास इंटरफेस क्या क्या क्रिएट है इसमें, सब A to Z यहाँ पे। सो वैसे ही इधर पे भी आपको सब मिल जाएगा, स्टैंडर्ड कंजम्पशन, स्टार स्टार डोमेन आ गया, मैंने आ जाता है वो आपको, ठीक है ना? फेवरेट पैकेज मेरा जी पैकेज में है। जैसे ओके, मैं अभी अपने सिस्टम, हेलो, हाँ बोलिए। अभी मैं जैसे अपने सिस्टम में देख रहा था, तो ये सिस्टम लाइब्रेरी में मेरे में तो बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं, मतलब फोर। सिस्टम लाइब्रेरी में हम्म। तो आपने सिस्टम लाइब्रेरी पैकेज में सेलेक्ट करके F5 कर दिया होगा। नहीं, मैंने बस जैसे सिस्टम लाइब्रेरी खोला वो और वो सारे पैकेजेस शो करने लग गए। हाँ वो तो स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड में तो आएगा ही। आपको हम्म। तो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में तो बहुत सारे पैकेज रहेंगे। हम्म। तो अभी जैसे हम, मेरे को कोई अभी खोलना है तो वो मेरे को किस में मिलेगा? जैसे आपको खोलना क्या है, आपको कहाँ जाना है, मतलब क्या करना है? जैसे मेरे को आई मैट्रिक्स रिपोर्ट्स ही खोलना है अभी, वो एक स्टैंडर्ड सीडीएस है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट ए मारिए, क्या हम्म। खोलना? I_, कंसोलिडेशन रिपोर्ट सी, आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, यही है, हाँ रिपोर्ट सी, हाँ। यही है एंटिटी हाँ। डाटा डेफिनेशन एक्सटेंशन एक्सेस कंट्रोल एंटिटी। तो आपको रिपोर्ट सी में डाटा डेफिनेशन दिखता है। अभी जैसे इसके आगे ये ग्रुप डेटा एनालिसिस आ रहा है क्यूब, तो ये मतलब रिलीज है ये पहले से? देखिए, क्या आ गया? आ हम्म। गया ना? तो ये आ हम्म। गया आपको। अभी इसमें जाएंगे आप, तो आपको ये एनालिटिकल है, ये आपको कंपोजिट है, ये है आपको कुछ कुछ से सब दिया हुआ है। ये आपको पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर में 1 2 3 4 4 है।
4 वैल्यू पास करना होता है और ये आपका व्यूज है और ये सब एसोसिएशन है। बस यही है आपको यही है। इसी में जाना है आपको और करना क्या है, बस चेक करना है कि कुछ करना है। नहीं उसमें यही चेक कर रहा था मेरे में भी शो रहा है क्या। ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे जाके चेक करिए, इसमें पूरा आपका पैकेज फुल। यहाँ नहीं जाना है आपको ज्यादा, यहाँ ज्यादा खोल देंगे तो वो ज्यादा आ जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम देगा बाद। समझ गया मैं। डायरेक्ट सर्च करिए और जब आपको कुछ हेल्प चाहिए तो api.com में जाके पहले हेल्प ले लीजिए, कौन सा है आपका व्यूज, राइट। हम्म ओके और से ठीक सर्च है करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं आ जाता हूँ, कंपोजिट हो गया, कंजम्पशन, एक कंजम्पशन भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, कंजम्पशन है आपका, कंजम्पशन व्यू है। इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसका। इसका आपको ये भी आपको यस है, एक्सटेंशन कोई भी कस्टम फिर भी सेम तो है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। मतलब वो वाला व्यू कंट्रोल शिफ्ट ए, डाटा डेफिनेशन, ये देखिए ये चीज है आपका। ये जो चीज दिख रहा है आपको, गेटवे सर्विस मॉडल B2 और गेटवे वोकेबुलरी एनोटेशन B2, हाँ ये आपको डाटा सर्विसेज के लिए requires कर। कंपोजिट नहीं था आपका वो डाटा सर्विसेज, वो बस एनालिटिकल जो एप्स होता है, एनालिटिकल जो एप्स होता है, हम लोग सीरियस नेम दे के हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट, एपीआई जैसा ऐसा मिल गया। लास्ट टाइम जैसे इशू गया हमें ये, यहाँ लिखा हुआ है, ये मेन पार्ट है आपका, ये जो लिख रहा है आउटलाइन, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये है ओ डाटा सर्विस एक्सपोज। इससे पता चलता है कि ये ओ डाटा सर्विसेज एक्सपोज है कि नहीं है। अभी समझ में आ गया? ठीक है, सर एक अब बार फिर से रिपीट करेंगे ये एक्सपोजर वाला जो पार्ट था, बस एक मिनट मैं थोड़ा मिस कर गया। जैसे आपने मैंने सीरियस व्यू गया कंपोजिट, मोस्टली आपको जो आपको कंजम्पशन सीरियस व्यू होता है ना, यही आपको हाँ एपीआई के लिए एनेबल होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ दी ज्यादा होता है, उसमें आपको एपीआई और ओ डाटा सर्विसेज का क्रिएट होता है। ओके, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे गए, ये देखिए ये एनोटेशन है, ओ डाटा डेटा पब्लिश पब्लिश इक्वल टू ट्रू। ओके, ओ ये डेटा आपको पब्लिश ये ट्रू। क्या करता है, ऑटोमेटिक वो डाटा सर्विसेज क्रिएट कर देता है। करेक्ट, यहाँ से भी आपको पता ओके चलेगा। और आपको कंट्रोल ए शिफ्ट, यहाँ पे जब आप व्यू नेम डालते हो, करेक्ट, 1 मिनट कॉपी कर हाँ ले हाँ पहले। ये कॉपी किया, ये डाला यहाँ पे। यहाँ पे जो नीचे वाला है ना गेटवे, जहाँ लिखा रहेगा ना गेटवे सर्विस मॉडल, हाँ वो हाँ वो आपको वो डाटा सर्विसेज में एनेबल कर दिया गया है। ओके, मतलब ये गेट पे अगर मुझे यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब ओ डेटा में ये एक्सपोज है, एक्सपोज है, राइट। यहाँ से भी पता चलेगा, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से भी पता चलेगा, ये जो मैं हाईलाइट अच्छा, किया हूँ यहाँ से भी सेकेंडरी पता ऑब्जेक्ट। चलेगा। हाँ, ओके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यही मेन है एक्चुअली, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मेन यहाँ एक्चुअल, मतलब यहाँ कंफर्म, ठीक है ये है, और एक्सपोज है मतलब। अभी मान लीजिए यहाँ से आपको रन करना है वो डाटा सर्विसेज,
तो इसको डायरेक्ट राइट क्लिक करके ओपन मारेंगे तो ये एपीआई कॉल करेगा अच्छा, ये और ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होगा। अब यहाँ पे यूजर आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड जो है ये यूजर है मेरा, करेक्ट? राइट। क्या ये यूजर डाला, पासवर्ड में डाल देता हूँ। ओके, ये आपका सर्विसेज है, एपीआई सर्विसेज और डाटा सर्विसेज। ठीक है, ओके। ये आपको पूरा डिटेल इधर मिलेगा, रेस्पॉन्स। इसको आप चाहे तो आप पोस्टमैन होता है ना आपका, पोस्टमैन, पोस्टमैन। हाँ हाँ हाँ। वहां पे आप ट्राई करके आप उसको कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन होना पड़ेगा जो, हाँ आपका फ्यूरी है ना, फ्यूरी से कर सकते हो। हाँ, हम लोग एसएससी से भी देख पाते हैं इसको, बट ठीक है, पोस्टमैन का टेस्टिंग तो कॉमन है, मतलब वो करना चाहिए। मतलब जैसे हम एसएससी से लोग अगर implementation नहीं भी। प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब हम लोग पोस्टमैन से करते थे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ है तो कर सकते हैं अभी यहाँ पे। बट जैसे पोस्टमैन में वो मांगेगा कि आप यूआरएल बताओ करके, तो हम यूआरएल कहाँ से जनरेट कर पाएंगे, या इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा जो हाँ हाँ ब्राउजर हाँ में हाँ, भी यूआरएल ये आया है? ब्राउजर का जो यूआरएल है, ये आपको देखिए, ये आपको ओके सोर्स नेम है, ये पोर्ट है, ये आपको यूआरआई है, ओके ओके। यूआरआई है। ठीक है। तो IWFND क्या था कीबोर्ड, मैन अंडरस्कोर सर्विसेज। सर्च है यहाँ विचार को, एक मिनट कीबोर्ड देखने पहले। IWFND एम सर्विस कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड हमारा। वो डाटा सर्विस जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इधर में आपको दिखता है वो डाटा सर्विसेज स्लैश एन। ओके, अभी मैं यहाँ पे वो डाटा सर्विसेज सर्च करूंगा इसके नाम से, इसी के नाम से सर्च करते हैं। ये देखिए, ये वो डाटा सर्विसेज, ठीक है, अंडरस्कोर सीडीएस लगाते हैं। सो ये है और डाटा सर्विसेज, ये ऑटोमेटिकली हाँ। क्रिएट टेक्निकल नेम, ठीक है। इसका देखिए, ये आपका गेटवे ओ डाटा सर्विसेज, इसका आईएफसी कोड मिल जाएगा आपको। इसमें सिस्टम एलियास की लोकल है, मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल सिस्टम है जो कॉल करना चाहता है, तो यहाँ पे आप उसको राउट कर सकते हो, ये मैं आपको करना पड़ेगा एनेबल। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल सिस्टम है, ऐड सिस्टम एलियास। मान मतलब लीजिए ये आप एसएपी से पूरी कहीं और हम बाहर भेज रहे हैं? एसएपी से नहीं, मैंने कोई और गेटवे। पोस्टमैन में अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ हमें वो लिखना पड़ेगा क्या कुछ, कि भाई ये पोस्टमैन का आईडी पासवर्ड ऐसा कुछ? देखिए, वन मिनट। सो अभी मैं बताता हूँ इसमें, ये हमारा एसएपी सिस्टम है, करेक्ट? हाँ। एसएपी सिस्टम है, ये इसी पे हमारा बैकएंड भी यही है, फ्रंट एंड भी यही है, गेटवे भी यही है, करेक्ट? करेक्ट। अभी कभी कभी क्या होता है ना डिजाइन में, मान लीजिए बैकएंड 3-4 सिस्टम है और गेटवे ये सिस्टम का यूज कर रहा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का यूआरएल है, लेकिन आप क्वालिटी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे एलायस क्वालिटी का। ओके ओके मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, रियल टाइम सिनेरियोस। वो तो ऐसे होगा, कुछ बोल दिया बस। अभी जैसे मान लीजिए एक एसएपी सिस्टम होता है, पीआरडी सिस्टम, रियल टाइम बता रहा हूँ, पीआरडी सिस्टम, राइट। उसके ऊपर EC2 डेवलपमेंट जो भी होता है, लैंडस्केप होता है, वो ये आपका रियल सिस्टम होता है। और यहाँ पे आपको एसएपी गेटवे होता है, गेटवे। ओके, अब ये एसएपी पीआरडी है, अब एसएपी जीआरसी भी है, कुछ होता है जीआरसी सिस्टम। और एसएपी का अलग अलग सिस्टम, मान लीजिए कुछ है, सब प्रोडक्शन सिस्टम, सब प्रोडक्शन है, ठीक है। सो गेटवे इन लोग एक यूज कर रहे हैं, गेटवे एक यूज करते हैं इसको, ये अलग इन्वायरमेंट में। ओके, हाँ, ये आपको ये अलग इन्वायरमेंट में है। चलो, ये सब नहीं आता है। तो ये अलग इन्वायरमेंट में है, और ये अलग इन्वायरमेंट में है। सो ये कनेक्ट होगा थ्रू RFC, राइट, मीन्स एलियास। सो इसको ये आर्किटेक्चर को बोलते हैं हब सिस्टम, हब सिस्टम। ओके, इसमें मतलब अलग अलग सिस्टम रहेगा, ये एक गेटवे रहेगा और बाकी 3 पीआरडी सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वो डाटा सर्विसेज क्रिएट होगा, यहाँ पे CDS व्यू रहेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे CDS व्यू रहेगा और यहाँ पे आपको ओ डाटा सर्विसेज रहेगा, ओ डाटा सर्विसेज, ओ डाटा सर्विसेज। ये व्यू को यहाँ से कॉल करेगा, CDS व्यू को। और यहाँ पे सर्विसेज IWFND में आप यहाँ चेक कर सकते हो, IWFND में यहाँ फ्यूरी भी यही रहेगा, फ्यूरी भी आपका यही रहेगा, फ्यूरी यही रहेगा। और SSC भी आपको इधर ही से कॉल कर, नहीं SSC आपको शायद आपको इतना कल मालूम नहीं, लेकिन SSC शायद आपको इससे भी कॉल कर सकता है, जरूरी नहीं। SSC एनालिटिकल एप्स जो होता है, ये डायरेक्ट आपको इसको कॉल कर सकता है, और इसको दोनों 2 वेज को कॉल कर सकता है। ये हो गया हब सिस्टम। और एक होता है एम्बेडेड सिस्टम, ये दोनों को मर्ज कर दिया, एक ही में मर्ज कर दिया। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये एम्बेडेड है, करेक्ट। तो उस केस में एम्बेडेड सिस्टम में यहाँ पे लोकल ही रहता है, लोकल सिस्टम, तो कुछ ऑथराइजेशन नहीं होगा शायद, इससे क्रिएट करने नहीं देता है। तो यहाँ पे लोकल होता है। और अगर हब सिस्टम रहता है तो यहाँ पे पूरा एलायंस डाला जाता है। तो ये हो गया। आपको अभी गेटवे सिस्टम क्लाइंट ओपन करते हैं, ये हो गया। ये आपको URL यूज करना होता है आपको पोस्टमैन में, और आपको सोर्स नेम तो बताया ही था। और यहाँ पे पोस्ट, मान लीजिए कुछ डाटा पोस्ट करना है तो यहाँ पे URL भेजिए। यहाँ से भी टेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है पोस्टमैन से कर ले, यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप, इसमें है क्या कोई वेरिएंट, ये देखिए इतना सारा वेरिएंट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो काम किया उसमें। ये सब किसका है मालूम नहीं, लेकिन है, बहुत लोग काम किया है बराबर से। ये सब वेरिएंट है। सब टेस्टिंग है, बैच टेस्ट, कम्प्लीकेशन। कोई कस्टम वाला नहीं है क्या?
तो कस्टम वाला है ही नहीं। जैसे एग्जांपल में कोई भी लेते हैं, एक क्या होता है, ये आया आपका पेलोड, ये सब बैच क्रिएटेड है, स्टैंडर्ड है, कोई सिस्टम जनरेटेड है, कोई सीडीएस ना कोई और डाटा है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आप एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स आएगा। ये रेस्पॉन्स है आपका 403 4 बिलियन, ऐसे ही काम करता है। नो सर्विस फाउंड फॉर द नेम स्पेस, कैसे काम करता है, कैसे टेस्ट किया जाता है। जब 200 आ जाता है तो हमारा ओके रहता है। मान लीजिए कोई ऑथराइजेशन कुछ भी इशू है या तो कुछ इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो यहाँ से पहले टेस्ट किया जाता है। जब 200 आ जाता है तो हम लोग बोल रहे हैं ओके है, कैसे क्लियर ओके है। वो डाटा सर्विस के बारे में बता रहा हूँ। सीडीएस सीडीएस तो हम लोग जहाँ जो लोग यूज कर रहे हैं वही कंफर्म कर पाएगा कि बराबर ऑथराइजेशन है कि नहीं। तो ये है आपको सीडीएस व्यू का सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, करेक्ट। और इसको कुछ है बताने के लिए और सबसे बराबर है। ठीक है, और आ जाते हैं हम अभी तो ये एक टॉपिक हम लोग देखे थे एपीआई में, और क्या टॉपिक था, सीडीएस व्यू, बेसिक व्यू क्रिएट किए थे, बेसिक हुआ, कंपोजिट हुआ, सब क्रिएट किए, जॉइंस जॉइंस राइट, जॉइंस एंड एसोसिएशन एसोसिएशन। और क्या, और क्या देखते हैं हम लोग? या एनोटेशन, एनोटेशंस हो गया। एनोटेशन एसक्यूएल बेस्ड था और एनटीटी बेस्ड था, राइट। एनटीटी हाँ यस। बेस्ड। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपको पैरामीटर, पैरामीटर सीडीएस व्यू। और पांचवें नंबर में आ जाएगा आपको क्या था, और सेशन, सेशन सीडीएस व्यू। छठवां नंबर में आ जाएगा आपको, और क्या था, क्लासिकल पैरामीटर। या कंजम्पशन व्यू, जो हम लोग एक से दूसरे कंज्यूम करके बनाए थे, राइट, कंजम्पशन व्यू। और हम लोग ऐसी 38 में कंज्यूम किए थे प्रोग्राम में, प्रोग्राम सीडीएस कंज्यूम किए थे और use किए थे। और SC2, और जब SC38 में जब कंज्यूम किए थे प्रोग्राम में, तब हम लोग SC22 से रेस थे। 8वें नंबर में आ जाएगा आपको सीडीएस व्यू कंज्यूम अदर सीडीएस, अदर सीडीएस व्यू।
राइट। और एनोटेशन में ये सब एनहांसमेंट कैटेगरी, डाटा क्लासेस, सेशंस, सब में लिखेंगे। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, पैरामीटर, ये है। ओके, ये सब है। और या वन मोर थिंग, या दिस वन, ad hoc path expression, कार्डिनलिटी, ये सब वगैरह सब एक ही में देगा, राइट। कार्डिनलिटी थोड़ा बराबर रहता है, कार्डिनलिटी और पाथ एक्सप्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सप्रेशन इसलिए लिख रहा हूँ, पाथ एक्सप्रेशन। और कभी कभी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है, इनर लेफ्ट आउटर डुप्लीकेट की कोड आता है, तो आउटर टू इनर, इनर जॉइन, ये सब है। ये सब हो रहा है। और इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 नंबर केस स्टेटमेंट, यानी वो देख लेता हूँ 11। अच्छा, हो गया, हो गया। ठीक है। सो केस स्टेटमेंट ये वाला मैं आज बता देता हूँ। और कुछ करेक्शन करवाना था, करेक्शन करना था कल जो हम लोग ने किया था, राइट पीरियड। तो इसमें मैंने क्या किया था कि जब भी आप आइटम यूज कर रहे हैं, आइटम यूज कर रहे हैं एसोसिएशन, और उसमें आप आइटम डिटेल डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप वेयर कंडीशन में तो डाल डाल रहे हैं, राइट। सो या एक में डालें तो बाकी सब में भी डालना पड़ेगा, सेम चीज डालना पड़ेगा, ये इसका रूल है। और यहाँ पे अगर आप एसोसिएशन ये दे दें, काम तो करता है लेकिन वार्निंग में रहता है। जैसे ये है आपका वार्निंग में, इसमें लिखा हुआ है कि the association item can modify with the cardinal of the result set such as sorry। तो यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी डालेंगे तो आपका एरर चला जाएगा। ये डालना रहता है। और दूसरा चीज, जब भी आप व्यू क्रिएट करते हैं, बेसिक व्यू क्रिएट कर रहे हैं विथ एसोसिएशन, तो ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट आपको माने ये चीज अवॉइड करना चाहिए, ये वाला अवॉइड करना चाहिए।
ओके, अवॉइड कर दिए। हाँ, और ये वाला भी नहीं डालना चाहिए आप, लेकिन जब मैं डाला इधर इसलिए मैंने ये यूज किया। अब क्यों इधर है? ओके, ये सर हम लोग कहीं यूज कर रहे हैं ना, वो 06 फील्ड शायद अभी भी यूज हो रहे हैं। हाँ, सीओ आइटम। में यूज हो रहा है, तो करना पड़ा। लेकिन हाँ, मैंने बेसिक व्यूज क्रिएट करके इसका डिजाइन ऐसा करना चाहिए कि ये ऐसी चीज अवॉइड करना, बेसिक बनाना चाहिए। इसके टॉप ऑफ जब हम लोग बनाएंगे उस पे ये सब यूज करना चाहिए, उस पे फिल्ट्रेशन और उसमें ये चीज यूज नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड में ऐसा किया हुआ है ये चीज। ये बस लास्ट सीरियस व्यू है, पाथ एक्सप्रेशन यूज करके इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जब हमको आइटम डिटेल कॉल करना रहेगा तो हम लोग इसका ये वाला कॉल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे डिजाइन रहता है इसका। बेसिकली ये चीज काटनी थी, ये काटनी थी, आपको मेंशन करना है, तो वार्निंग चला जाता है। और ये एक चीज था, तो मिस आउट हो गया था। तो कोर्स नाम या वन मोर थिंग इज देयर। मैं उस दिन जो आपको दिखा रहा था, जैसे ये राइट, तो क्लोज करते सब लोग। इस पे आपका मटेरियल, ओके ठीक है। ये है करेक्ट, ये वाला पार्ट उस दिन मैं करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया था, इसको कमेंट कर रहा हूँ। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, डाटा प्रीव्यू। डाटा प्रीव्यू, इसमें आपको एक मटेरियल का डिस्प्ले हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज,
और इसका जब आप एसोसिएशन में जाएंगे तो आपको 3 डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इसमें आपको मान लीजिए इंग्लिश का ही चाहिए और बाकी चीज नहीं चाहिए, करेक्ट। ये ट्राई करने का कोशिश कर रहा था मैं, इधर नहीं हो पा रहा था। तो ये आपको डालना होता है ऑन कंडीशन के साथ। ऑन कंडीशन के साथ जब एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, ऑन कंडीशन के साथ आपको ये फिल्टर डालेंगे तो आपको काम करेगा। So here I'm coming, open with data preview. Now I'm going to association. So now it is filtering based on this language. So like that also, if you want to do some filtration based on MKT, one minute, I will run this. What is the output? This is the material, line item 1 and 2. And now I'm going to MKT. There are lots of number, right? And lots of language, correct? So I want to filter this with English language. So I'll close this. Yeah, this one, right? So here I will put with, yeah, see coming with default filter. Yes, PRS, nice PRS. Or yes, PRS. Yes, PRS. So there is this one. So let's go to C, just prime it. Dot yes, RS language equal to, I have to put E. Okay. So now I will activate it. So let activate. Now I'm going to association and MKT. Yeah, here it is filtering. But here is a duplicate record, correct? For duplicate record, yes. Let me check duplicate record. I have tried, but duplicate record I'm not able to solve it. From there will be some distinct. Yes. I will give one also, it will not work. It will not work. Not work. So here is your distinct, right? Why it is not working? Because in header, right, we have 2 line item. I will explain why it is not working and why duplicate record is coming. So see, this is the header part. In header part, we are extracting 2 line item.
right? 10 and 20, right? So for this record, it is displaying one description. For this record, it is displaying one description. This is the reason. So now if I will use the distinct, right, then it will work. But see, for one record it is coming, for second record it is, for two line item it is displaying. If I will remove, अगर मैं यहाँ से ना ये दो आइटम को रिमूव कर दूं, करेक्ट, तो मेरा काम करेगा, एक आएगा। आइटम हेडर में आपको सिंगल रिकॉर्ड रहता है, आइटम में आपको दो रिकॉर्ड रहता है, वो दो रिकॉर्ड के बदले वो आपको डिस्क्रिप्शन लेके आ, ये इसलिए आता है सर डुप्लीकेट रिकॉर्ड, करेक्ट। इसलिए ज्यादातर हम लोग बेसिक क्रिएट करके उसको रीयूज करते हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। सो नाउ ये हो गया, या हियर आर सम डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बेसिक में, हाई रीफिलिटी है, कंपोजिट में हाई, कंजम्पशन में लो, पैरामीटराइज में वेरीज, डिपेंड आप कैसे उसको कर रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं इनपुट पैरामीटर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक व्यू। So here use cases act as a review foundation of other views, यही इसका है, composite intermediate layer of the consumption view, okay, used in Fury apps and reporting tool। कौन सा consumption view, यहाँ ओ डाटा पब्लिश है, ट्रू है, right, consumption, and here composite it is not there। Parameterized, I have explained already, parameterized with parameter ID, useful the specific context driving queries। So ये सब है, आपको इसमें आप चाहे तो कन्वर्जन भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन ऐसे यूज करते हैं, और सम मैक्स मिनिमम एवरेज काउंट, ये दोनों आप कैसे यूज करना है, और वेन केस भी यूज कर सकते हैं। वेन केस चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो आप लोग, ज़्यादा ये टफ नहीं है, केस है बस। जैसे मान लीजिए पेवलन है, इधर पे मैंने एक तो कंज्यूम है, राइट, और वाला लेते हैं, मारा है, ओके, मारा में हम यूज कर सकते हैं। सो मारा टेबल, डू यू नो अबाउट मारा टेबल, मारा मारा में आपको डाटा प्रीव्यू, डाटा प्रीव्यू में रहेगा या MTART, ओके, MTART। So case MTART, MTART, so when that's the value, FERT, right? FERT,
then I will write something. Material type 1. Suppose I'm here when what is HAL then material type 2 others is what that's yeah here else and yes. As red type. So as and case as sorry and case so this is like this. Now I will execute it. एंड केस विल बी एंड केस हम लोग उसमें लिखते हैं अबव प्रोग्राम में. तो या मटेरियल टाइप 1. So this is like this. It works. Suppose या मटेरियल 2 मटेरियल टाइप 2 और जिसका नहीं डाला हूँ उसका ब्लैंक आ रहा है. So like this it works in case. Okay, from tomorrow I will go start element level annotation. Okay, ठीक है. हेलो ठीक है. हाँ अंकुर हाँ. हेलो हेलो.
Everyone is there or someone left? रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। Hello, Saksham.